Let's continue our next topic, that is the positive deviation of or from the Rawls law. In my previous video lectures, I discussed about the Rawls law. So what is Rawls law? It states that while we are talking about a volatile solution, means either the both components are volatile in nature, means they can be easily get in a vapor phase, or either a liquid solvent is volatile in nature, or with either a solute liquid can be volatile, or both can be volatile. In that case, the amount of the solute is directly proportional to its vapor pressure, partial vapor pressure, because that means the volatile component जो है वो इवोपरेट करेगा और उसकी जो कंसंट्रेशन या जो अमाउंट है सोल्यूशन में that is directly proportional to its partial pressure. So mathematically अगर हम Rawls law को लिखते हैं, that means Rawls law means the partial pressure of a volatile component, it can be a solute, it can be a solvent, is directly proportional to its mole fraction in the solution, which can be also written as that is directly proportional to the product of its pure pressure and its concentration in the solution. So this is the Rawls law, and this is applicable for a volatile solution where either a liquid solute, both solvent and a solute can be, or in a solution where solid is a non-volatile but liquid is a volatile in nature. So we can express its partial pressure in the form of its product with its mole fraction and its pure pressure. Now, what is a positive deviation? As we are talking about Rawls law, as we are talking positive deviation, अगर Rawls law जो भी solutions Rawls law को follow करते हैं, in that case दो conditions बहुत must होनी चाहिए, that delta mix volume should be equal to 0, delta mix enthalpy should be equal to 0, and the new force of attraction between the solute and the solvent particle equal to the force of attraction what they are having in a solvent and what they are having in a solute. So these are the conditions, basic conditions कि ये इस चीज को फॉलो करना चाहिए. उनका जो पार्शियल प्रेशर है दैट शुड बी लाइक दैट, delta mix volume should be 0, delta mix enthalpy of the solution 0, and the force of attraction should be equal to the what they are having in its pure form. Okay, and जो हम what we are making as a grammatical, यहाँ पे जो भी हम इसे diagrammatically जो बनाएंगे, तो diagrammatically अगर हम इसको बनाते हैं that is, यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रेशर एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो व्हाट विल हैपन, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है कि जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है या उसका जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू 1, और जो दूसरा कंपोनेंट है उसके जो मोल फ्रैक्शन है इनिशियली दैट इज 0, मीन्स अभी हमारा जो सॉल्वेंट है दैट इज इन ओनली इन अ प्योर स्टेट. तो इसका जो प्योर प्रेशर है इट इज लाइक दैट, यहाँ पे होगा ये कंपोनेंट 1 का प्योर प्रेशर है. सिमिलरली जब हम यहाँ रीच करेंगे तो जो x2 या हमारा सेकेंड कंपोनेंट है दैट इज हैविंग अ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू यूनिटी. टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी. तो जो फिर हमारा कंपोनेंट 1 था दैट इज हैविंग अ 0 मोल फ्रैक्शन. नाउ यहाँ पे जाके वी आर हैविंग अ प्योर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट सेकेंड. What will happen, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो x2 है उसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0. तो 0 से स्टार्ट करते हुए हम जब ले जाएंगे और ये हाईएस्ट हो जाएगी व्हेन इट इज हैविंग अ प्योर प्रेशर. सिमिलरली यहाँ पे x जो कंपोनेंट 1 है उसकी कंसंट्रेशन 0 है, लेकिन वो हाईएस्ट हो जाएगी जब हम
प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए पे पहुंच जाएंगी। और जब हम इन दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन करेंगे, वी विल गेट अ टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज फॉर द P1, दिस इज फॉर द P2। अगर अब वो पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, इन केस ऑफ अ पॉजिटिव डेविएशन व्हाट विल हैपन कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा बिटवीन द टू कंपोनेंट्स, जिसके मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जो पॉजिटिव डेविएशंस हैं वो किस किस के बीच में होगा, एसीटोन और इथेनॉल के बीच में। मीन्स यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन आर वेरी वीक। जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए वी इज वीक। अगर ये वीक है, इट मीन्स इट नीड एक्स्ट्रा heat to form this bond, means delta mix enthalpy is greater than 0, means it is not equal to 0, it is greater than 0, and it is now not following the Raoult's law। अगर ये Raoult's law को फॉलो नहीं कर रहा है तो मीन्स इन दैट केस जो पार्शियल प्रेशर है ऑफ एनी कंपोनेंट is not equal to its pure pressure and its mole fraction। तो ये भी नहीं होगा। एंड सेम वे अगर हम इसको P1 कर लेते हैं, सिमिलरली जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है, अगर बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, तो जो सेकेंड कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर भी जो है इट इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है तो डेल्टा मिक्स एंथैल्पी इज ग्रेटर देन 0, उसको तो एक्स्ट्रा हीट चाहिए बिकॉज जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो तो बन ही नहीं रहा है, वे आर वीक। अगर वीक है देन व्हाट विल हैपन, जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज द ग्रेटर टोटल पेपर प्रेशर जो है दैट इज ग्रेटर देन द व्हाट Raoult इज शोइंग देयर। सेम वे जो हमारा कंपोनेंट 1 है उसका भी जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज द ग्रेटर व्हाट इज शोन बाय द Raoults। सेम वे जो हमारा कंपोनेंट सेकेंड है उसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन व्हाट Raoults ऑब्जर्व्ड इन इट्स ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। सो दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन जो मैंने ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है। दिस इज द प्योर मीन्स यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 है, ये 2 है, ये जो है हमारे प्योर प्रेशर है इन कंपोनेंट्स के, ये टोटल है। बट इफ अ सोल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जिसके यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, एसीटोन इथेनॉल, एसीटोन बेंजीन, इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। मीन्स जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, इसको फॉलो नहीं करेगा, इट इज ग्रेटर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम क्या शो करेंगे, जो P1 है पार्शियल प्रेशर है इट इज ग्रेटर नॉट इक्वल टू दैट, इट इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्योर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। सेम वे जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट सेकेंड का इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्योर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। डेल्टा मिक्स इज हायर देन 0। सेम वे जो हमारा डेल्टा मिक्स वॉल्यूम है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन दी 0। सो डेल्टा मिक्स वॉल्यूम इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब जो न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बनेगा वो बहुत वीक हो जाएगा, तो फिर वो Raoult's law को तो फॉलो नहीं करेगा। इट इज ग्रेटर देन what they are what Raoult is showing, delta mix is greater than 0 because उसको हीट चाहिए, then only it can be make a new bonds। but जो एक्चुअल उसका पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा या पार्शियल प्रेशर आएगा इट्स मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द Raoults, and delta mix is also greater than, delta mix volume is also greater than the 0। So these all for the
पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पे दिस इज दी solutions showing positive deviation. तो मैंने और किससे, फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ। मैंने यहाँ पे रॉल्स लॉ लिख दिया है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख दिया है, व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस वन रॉल्स ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉल्यूशन इज आइडल। वैसे तो कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडल नहीं है, बट इट इज नियर टू बी आइडल। और अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशंस शो करती हैं, यहाँ मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं, ये ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड बट सॉल्यूशन इज नॉन आइडल, whether it is showing positive deviation but it is a non-idle। these are the conditions कि greater than 0 है, greater than 0 है, greater than the product of its pure pressure and mole fraction है, and जो new force of attraction between the component of solution है, that is very weak। So see you soon in next video with the negative deviation from the Raoult law।